Good morning, students. Hope you are fine. Today we will start chapter 1 of political science, that is, what is democracy? Why democracy? Means in this chapter you will learn about the definition of democracy and why we follow democracy. Here are some stories related to democracy which come in your first chapter, but now as you know it is deleted from the syllabus. Here are some stories of the countries who got their independence and became democracy. Like here is example of Chile before and after Pinochet's rule. Next is Poland after the fall of communist rule, and third one is Ghana in the early period of Nurmaha government. Means in these stories you will be able to learn how these countries became democratic. Now here is a simple definition of democracy. Means what is democracy? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Means democracy गवर्नमेंट की वो फॉर्म है, वो रूप है जिसमें लोग अपने रूलर्स खुद चुनते हैं. रूलर्स कैसे चुनते हैं? When we give vote to our representatives and make them our leaders, they form the government and they work for the people. That's why it is called democracy और लोकतंत्र. मीन्स किसका तंत्र, किसकी सरकार? लोगों की सरकार. Now the features of democracy means how we come to know about the features of democracy. When we get the answers of these questions, we are able to learn about the features of democracy. Means like a definition is democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. So first question is who are the rulers in this definition. में जिन rulers की बात की जा रही है वो कौन है. नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. मीन्स किस टाइप के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहेंगे. नेक्स्ट इज हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स. मीन्स वो कौन से लोग होते हैं जो अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं. एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी. की डेमोक्रेसी किस टाइप की गवर्नमेंट है. सो through the answers of these questions we will be able to learn about the features of democracy. Now first feature is major decisions by elected leaders. This is the answer of first feature of democracy. Here are example of Pakistan. Like in Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. You have to underline important words or important sentences in 1 mark. They can come in 1 mark questions. Like when was a military coup controlled Pakistan? When? In October 1999. Means अक्टूबर 1999 में. हु कंट्रोल्ड पाकिस्तान? जनरल परवेज मुशर्रफ. He overthrew the democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. उसने जो वहाँ की democratically elected government थी उसको बाहर करके यानी कि उसकी पावर को ख़त्म करके अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि उसके पास मिलिट्री पावर्स थी. Later he changed his designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5 years extension. और उसके बाद उसने क्या किया. अब पहले तो वो क्या कह रहा था अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव, बट उसके बाद उसने अपनी डेसिग्नेशन चेंज करके क्या बोल दिया कि आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. व्हेन इन 2002 एंड हेल्ड अ रेफरेंडम इन अ कंट्री. और उसने क्या एक रेफरेंडम, एक डायरेक्ट वोट. रेफरेंडम मीन्स a direct vote in which entire electorate is asked to whether accept the proposal or reject the proposal. Pakistani media, human rights organization and
activists said that the referendum was based on माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। मीन्स जो वहाँ के जो लीडर्स थे, मीडिया एम्प्लॉयज़ थे, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे और जो लोकतांत्रिक एक्टिविस्ट थे, जो समाज सेवी थे, उनका क्या मानना था कि जो उसने ऑर्डर पास किया है वो कैसा है, माल प्रैक्टिसेस, यानी कि वो फ्रॉड करता है, उसने कुछ जो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया हुआ। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेम ऑर्डर। Question can come: who issued legal frame order and when? General Pervez Musharraf in 2002। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि किसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को इशू किया। तो द आंसर विल बी जनरल परवेज मुशर्रफ इन अगस्त 2002 issued a legal framework order and that amended the constitution of Pakistan। उसने क्या किया, फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की, चेंजेस किए। According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies। मीन्स इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या था, पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो खुद ही उसने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया था, तो उसके पास पावर थी कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली जो भी सभाएं होती हैं उनको भंग कर सकता है, उनको डिसमिस कर सकता है। The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council which is dominated by military officer। उसने क्या कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको, वो भी किसके अंडर रहेगी, मिलिट्री ऑफिसर्स के अंडर। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड provincial assemblies। So Pakistan has had elections, elected representatives, have some powers, but the final power rested with military officers and General परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। मीन्स उसके बाद इलेक्शंस तो हुए पाकिस्तान में, रिप्रेजेंटेटिव्स भी चूज किए गए, बट उनको बहुत ही लिटिल बिट, बहुत ही कम पावर दी गई, जबकि जो मेन पावर थी वो किसके हैंड्स में थी, या तो मिलिट्री ऑफिसर्स के हैंड्स में या फिर मुशर्रफ के में। ये क्या क्लियर करता है, देयर आर मैनी रीजंस वाई पाकिस्तान अंडर मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। मीन्स हम कहें कि वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, फिर भी हम उसको डेमोक्रेसी क्यों नहीं कहेंगे, वो क्या था, एक तरह से डिक्टेटरशिप था, क्योंकि जो पावर थी वो किसके हैंड में थी, मुशर्रफ के हैंड में। पीपल में हैव इलेक्टेड, सेम आंसर कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स तो चूज करें, बट the elected representative were not really the rulers। They cannot take फाइनल डिसीजंस, क्योंकि उनके पास कोई पावर ही नहीं थी कि वो फाइनल डिसीजन ले सके। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड with army officials and General Pervez Musharraf। So, is it clear the picture? In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people। यानी कि फर्स्ट फीचर क्या है, यानी कि जो पाकिस्तान का एग्जाम्पल है, ये क्या दिखा रहा है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि जो अगर डेमोक्रेसी होती तो जो मेन पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, वो किसके हैंड्स में होती, उन लोगों के हैंड्स में जिनको, उन रिप्रेजेंटेटिव्स के हैंड में जिनको लोगों ने खुद चूज किया है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन की, कैसे इलेक्शंस, इसमें किसकी बात आती है, इलेक्शंस की। देयर इज एग्जांपल ऑफ चाइना। क्या कहते हैं, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। कि चाइना में रेगुलरली इंटरवल 5 years के गैप पे इलेक्शंस होते हैं जिसमें पार्लियामेंट को बनाया जाता है, और पार्लियामेंट का वहाँ पे क्या बोला जाता है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। यानी कि कंट्री के प्रेजिडेंट को अपॉइंट करने की पावर किसके हाथ में है, नेशनल पीपल कांग्रेस के हाथ में। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। देख उसमें जो पार्लियामेंट है उसमें कितने, नियरली 3000 मेंबर्स हैं, जो उनकी क्या करते हैं, प्रेजिडेंट चूज करते हैं। But before contesting elections, a candidate need the approval of the Chinese Communist Party। कहते हैं बट इलेक्शंस को लड़ने के लिए, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए कैंडिडेट को किससे अप्रूवल चाहिए होता था, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थे। सिर्फ वही लोग, वही मेंबर्स को इलेक्शंस की परमिशन मिलती थी जो या तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के होते थे या उसके ही बराबर जो 8 स्मॉलर
पार्टीज हैं उनको ही सिर्फ अलाउ किया जाता था कि वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करें, इलेक्शन लड़ सके। कब? इन 2002 एंड 3 में। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और जो गवर्नमेंट होती थी यानी कि सिर्फ मेंबर्स, कौन से मेंबर्स को अप्रूवल मिलता था? कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स को। सिंस द इंडिपेंडेंस इन 1930s मेक्सिको होल्ड elections after every 6 years to elect its representatives. But until 2002, every election was won by a communist party, PRI, sorry. क्या कहते हैं, इलेक्शंस होते थे मेक्सिको में आफ्टर 6 ईयर, प्रेसिडेंट चूज किया जाता था कब? बट 2002 के इलेक्शंस, 2002 के इलेक्शंस तक कौन जीतता था? सिर्फ पीआरआई पार्टी, यानी कि पीआरआई मीन्स इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। मीन्स कहने को तो इलेक्शंस हो रहे हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, 6 ईयर्स चाइना में, मेक्सिको में, बट सेम पार्टी है हमेशा जीतती थी। ओपोजिशन पार्टी डिड नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट न्यूअर मैनेज टू विन, नेवर मैनेज टू विन। क्या कहते हैं, ओपोजिशन पार्टीज इलेक्शंस तो लड़ती थी मगर कभी भी जीत नहीं पाती थी, because the PRI was known to use many dirty tricks to win elections। क्योंकि PRI जो पार्टी थी वो क्या करते थे? वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते थे, माल प्रैक्टिसेस करते थे, फ्रॉड करते थे, लोगों को कंपेल करते थे और मस्कुलर पावर एंड मनी पावर के थ्रू सभी वोट्स अपने अंडर ले लेते थे। तो इसलिए हमेशा वो PRI ही जीती थी। इसमें शो किया गया कि कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट टीचर्स, एम्प्लॉयज़ लोगों को फोर्स करते थे और लास्ट टाइम पे, लास्ट मिनट में पोलिंग बूथ को एक्सचेंज कर देते थे ताकि लोगों को प्रॉब्लम हो और वो वोट देने ना जा पाए, और जिससे क्या होगा कि पीआरआई ही जीत जाएगी। सो थ्रू दिस एग्जाम्पल ऑफ चाइना क्या क्लियर होता है कि चाइना में इलेक्शंस हो रहे हैं, कॉन्टेस्ट है, ओपोजिशन पार्टीज भी हैं, बट हमेशा कौन सी पार्टी जीतती है? पीआरआई। तो क्या शो करता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। तो सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। की डेमोक्रेसी किस पे बेस होनी चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे, where those currently in power have a fair chance of losing। मीन्स जो भी पावर में है उनको भी चांस मिलना चाहिए लूजिंग का। मीन्स अगर उनको पता होना चाहिए कि अगर वो वर्क नहीं करेंगे प्रॉपरली, लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क नहीं करेंगे, कंट्री के वेलफेयर के लिए वर्क नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट इलेक्शंस में उनको वोट नहीं मिलेंगे। सो दिस इज द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। क्या शो करते हैं कि एवरी पर्सन जो भी वोट देते हैं उन सब की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम, मीन्स कोई विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हियर आर एग्जांपल्स ऑफ सम कंट्रीज लाइक अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया वीमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। 2015 तक सऊदी अरेबियन वीमेन को राइट ही नहीं था कि वो वोट दे सके, बट आफ्टर 2015 दे गॉट right. Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। और एस्टोनियन कंट्री के जो एग्जाम्पल है उसमें क्या होता है कि वहाँ के जो सिटीजनशिप ही ऐसे मिलती थी कि जो रशिया की माइनॉरिटी, रशिया के जो माइनर लोग हैं उनको राइट टू वोट ना मिल पाए। सेम एग्जाम्पल ऑफ फिजी ऑल्सो। सो क्या शो कर रहा है कि डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी क्या होगी? जहाँ पे वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग हर पर्सन को वोट देने का राइट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर, एक्सेट्रा। सो in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value। में सबके पास एक वोट देने का राइट है और हर किसी के वोट की सेम वैल्यू है। So this is the example of feature of democracy. Now last is rule of law and respect for rights. Here is example of Zimbabwe, means how Zimbabwe cannot be called a true democratic country. Now example of Zimbabwe. Zimbabwe attained independence from white minority rule in 1980। में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिली? वाइट माइनॉरिटी से 1980।
Since then, the country has been ruled by ZANUPF, the party that led the freedom struggle. मीन्स तब तक कौन सी पार्टी वहाँ पे कौन कर रही थी, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रही थी. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. Elections were held regularly and always won by ZANUPF. में इलेक्शंस तो होते थे रेगुलरली और हमेशा कौन सी पार्टी जीतती थी, ZANUPF. President Mugabe was popular but also used unfair practices in election. क्या कहते हैं कि वो जो प्रेसिडेंट था मुगाबे वो पॉपुलर तो था, लोगों में लोकप्रिय था, बट वो क्या करता था, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करता था इलेक्शंस में, यानी कि डर्टी ट्रिक्स और फ्रॉड करता था. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. कहते हैं कुछ सालों बाद उसकी गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाए, बहुत बार चेंजेस लाए, जिससे प्रेसिडेंट की पावर तो इंक्रीज हो जाए और वो लोगों के लिए अकाउंटेबल आंसरेबल ना हो. ओपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरासड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड. जो ओपोजिशन पार्टी के लोग होते थे, वर्कर्स होते थे, उनको ह्यूमिलेट किया जाता था, उनकी मीटिंग्स को डिसमिस करवा दिया जाता था. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. वो क्या कर रहे थे कि कोई भी उनके अगेंस्ट वॉइस ना कर सके रेज. पब्लिक प्रोटेस्ट को रोक दिया गया. राइट टू क्रिटिसाइज, और मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, इन सबको कंट्रोल किसके अंडर थे, वो कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन. और वो क्या करते थे, सिर्फ जो रूलिंग पार्टी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको शो करते थे. मीन्स मीडिया भी अंडर कंट्रोल था किसके, गवर्नमेंट के. देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स बट द गवर्नमेंट हरास्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट. मीन्स कहने को तो वहाँ पे न्यूज़पेपर्स थे, बट उन जर्नलिस्ट को, उन पत्रकारों को सजा दी जाती थी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट न्यूज़ करते थे. एंड समटाइम्स द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड persuaded judges. He was forced out of office in 2017. और कभी कभी तो वो जजमेंट जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता था उसको भी डिसमिस कर देता था. सो द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल of the rulers is necessary in a democracy but it is not sufficient. मीन्स पॉपुलर तो होना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, जो प्रेसिडेंट हो या जो रूलर हो, बट सफिशिएंट नहीं है कि पॉपुलर होना, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, प्रॉपर डेमोक्रेसी के जो एस्पेक्ट्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो पहलू हैं, उनको फॉलो करना चाहिए. सो हियर एग्जांपल्स ऑफ 4 कंट्रीज, पाकिस्तान, China, Zimbabwe, and other, Saudi Arabia, etc. This shows that the features of a democracy. और क्या है features? And the features are that, again, summary definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Means here answers of that questions. Rulers elected by the people take all the major decisions. Means जितने मेजर डिसीजन ले जाते हैं वो इलेक्टेड पीपल ही ले. इलेक्शन ऑफर अ चॉइस, में इलेक्शंस में चॉइस होनी चाहिए एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए लोगों को, कि अपने करंट रूलर्स को, अगर वो अपने करंट रूलर से सेटिस्फाई नहीं है, सो वी कैन चेंज देम. दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस. और जो चॉइस यानी कि राइट टू वोट है वो सभी लोगों को इक्वल मिलना चाहिए, जिससे इक्वलिटी हो, क्योंकि डेमोक्रेसी का मेन एसेंसी क्या है, इक्वलिटी है. सोल जो है डेमोक्रेसी, दैट इज इक्वलिटी. एंड द लास्ट इज द एक्सरसाइज ऑफ दिस choice leads to a government limited by basic rules of the constitutions and citizens rights. Means अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगी और सिटीजन्स के राइट्स को प्रिजर्व करके रखेगी, तभी जो है गवर्नमेंट ट्रूली वर्क कर पाएगी और तभी वो लिमिटेड रहेगी. मीन्स गवर्नमेंट को सभी जो रूल्स रेगुलेशंस है विच आर रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फॉर द सिटीजन्स राइट, government has to follow. Only then we can say that our government is a democratic government. I hope it is clear now. You all have to read this topic and underline one mark questions answers. Thank you.